Hello dear students, I am Mrs. Ekta God with my new one video. In this video, I am going to tell you about the importance of the biology. But sometimes you get confused that why should we opt the biology, not the commerce, not the maths, not the arts. So here just my advice to you, if you are very good in calculation, then you can opt the maths and commerce. But if you are not good in the calculation, then you should try to opt the biology or the art streams. So as I am a biology teacher, I like the biology subject. So here I am going to tell you few favorable conditions about the biology. If you want to take the science and you are not good in the calculation, then easily you can get so many lines with the subject biology. So students, if you have any kind of confusion about which stream should I choose after the class 10, so just watch my video till the end of it and just it will help you that why should you opt the biology, not the any other subject of the science if you are not good in the calculation. So really it is not easy to choose the option after the class 10, क्योंकि आप बच्चे हर सब्जेक्ट को पसंद तो करते हैं बट लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि हमें इस लाइन से क्या क्या हमें कैरियर मिलेंगे, हम इसके बाद क्या कर सकते हैं। एक्चुअल में इस एज में आप सोच भी नहीं पाते हैं कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, तो उसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पर यदि आप साइंस सब्जेक्ट के साथ जाते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश तो हर कीमत पर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपके पास दो डिसीजन आ जाते हैं, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स या इवन कॉमर्स, ठीक। तो यदि आप कैलकुलेटिव हैं, यू आर वेरी इजी विद द कैलकुलेशन, आपको फार्मूलाज याद करने में, एक के बाद एक फार्मूला को यूज करने में या प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने में आसानी होती है, तो आप बिल्कुल मैथमेटिक्स लीजिए और कॉमर्स लीजिए। लेकिन यदि आप कैलकुलेटिव नहीं हैं बट यू आर गुड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, देन यू should opt the science stream as biology. In this video, I am going to tell you about the importance of biology. बायो से केवल आप MBBS डॉक्टर ही नहीं बनते हैं, बायो से आपके पास बहुत सारी फील्ड्स होती हैं बच्चों, जिनके बारे में एक्चुअल में आपको अभी पता ही नहीं होता है। तो यदि उनमें से भी आप कोई एक एम बनाकर अपनी पढ़ाई करते हैं या अपना एक टारगेट वो रखते हैं, तो देन यू कैन गेट वेरी फैबुलस jobs in this field with this subject. So if you decide biology, so it is not a wrong option. So bio means the living creatures. Living creatures are millions in numbers on this earth. तो आप केवल ह्यूमन स्ट्रक्चर, ह्यूमन फंक्शनिंग और ह्यूमन ट्रीटमेंट के बारे में ही नहीं जानते हैं बच्चों, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं, बहुत सारे एल्गीज हैं, फंजाइज हैं, उनकी हम स्टडीज करते हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, हम वो बन जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिस्कवरीज हैं जो की जाती हैं, वो सब बायो के ही अंतर्गत आते हैं। तो यदि आप बायो ले लेते हैं और उसके बाद इन फील्ड्स में जाने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास एक अच्छी जॉब और रेपुटेड जॉब्स भी आपको मिलती हैं। तो चलो आगे हम देखते हैं that why should we choose biology after 10. Watch this video till end of it, and I am going to introduce many videos related to the subject biology. So know more about the biology and what kind of branches you are getting through the subject biology, that I am going to tell you. So here, what are doing biologists in your surroundings? Just they can take the selfies. तो selfies का मतलब यही नहीं है कि आप ऊपर से कैसे दिखाई दे रहे हैं। Actual selfies means कि आपकी जो सेल है, अंदर की सेल्स हैं, are they happy with you? Are they want to be the part of your life? So about that much you know about yourself कि आप अपने अंदर से कैसे हैं, and later on when you become the doctor or the microbiologist
or you go with the biotechnology, then you can take the selfies and you can tell to the others then how should you take the selfies of yours. So what is biology? Biology is the science of life. Its name is derived from the Greek words bios and logos. यानी जब हम अपनी लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसको उन्होंने बायोलॉजी कहा. ठीक है. बायोलॉजिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, origin, evolution and distribution of living organisms. तो बायोलॉजी से हम बहुत सारी चीजें जान लेते हैं कि हमारा इस धरती पर स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ, उसकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है, हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे और अच्छे से ओरिजिन कर सकते हैं या हमारा ओरिजिन कैसे हुआ है, क्या क्या इवोल्यूशन होता चला गया. ठीक है. किस तरह से हमारी लाइफ डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में. तो क्या आपको नहीं लगता कि आप सबको ये सब बातें जाननी चाहिए कि एक्चुअल में हम इस धरती पर क्यों ग्रो हुए हैं. यस, वी आर ऑल्सो ग्रोइंग ऑन दिस अर्थ. हम भी पेड़ पौधों की तरह ही ग्रो हो रहे हैं. सो नाउ लेट्स मोर अबाउट द बायो. बायोलॉजी इज द नेचुरल साइंस दैट स्टडीज लाइफ and living organisms, including their physical structure, chemical processes, molecular interactions, physiological mechanism, development and evolution. तो what is biology? It is a natural science जिसके बारे में हम living organisms, उनका physical condition और उनके अंदर होने वाले chemical process को पढ़ते हैं. किस तरह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, किस तरह से वो फंक्शनिंग करेगा, किस तरह से वो डेवलप होगा. मतलब हम हर वो चीज पढ़ रहे हैं बायो में जो इस धरती के लिए जरूरी होती है. As you can see about the biosphere, how does biosphere form? When it works with the lithosphere, hydrosphere and atmosphere, then we get the biosphere. So biosphere is that environment which we are getting on this earth. अब ये इसमें अर्थ में बायोस्फीयर वर्क फंक्शन कैसे करता है. देखो, जो हमारी बॉडी का एक पार्ट है, यदि मैं उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में भी बोलूं तो वो भी एटम ही है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म. लेकिन हम भी किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं. जब एटम मॉलिक्यूल्स बनाता है, यानी एक से ज्यादा एटम जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. उन मॉलिक्यूल्स के बनने से ही सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं. जैसे कि इस धरती पर पहले 1 यूनिसेलुलर सेल्स बनने शुरू हुए. ठीक है. तो वो सेल ऑर्गेनल्स बने. उन सेल ऑर्गेनल्स से कुछ सेल फॉर्म हुई, सेल से टिश्यूज फॉर्म हुए, टिश्यूज से ऑर्गन्स फॉर्म हुए और तब ऑर्गन से सिस्टम फॉर्म हुए और सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बने, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनी, पॉपुलेशन के बाद में हमें इकोसिस्टम मिला. बहुत सारी फूड चेन्स, फूड वेब एक साथ काम करने लगे. तो इकोसिस्टम से वी हैव गॉट आवर बायोमास, जो हमारा कंप्लीट बायोमास है, दैट वी हैव गॉट. तो उन सब से मिलकर बायोस्फीयर बना. अब जब हम यहाँ से एटम से लेकर बायोमास तक जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि कितने सारे प्रोसेसेस हैं. तो ये केवल बायो में आपको केवल डॉक्टर ही नहीं बनना है. यू हैव सो मेनी फील्ड्स टू चूज ऑफ योर चॉइस एंड द एडवेंचर यू कैन गेट विद द सब्जेक्ट बायो. ठीक है. चलो अब मैं आपको इसके बारे में और बताती हूँ. फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी. तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है मेरी इस वीडियो से. आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स. ठीक है. क्योंकि हमें केवल साइंस में भी हमें जाना है और हम बायो से इसलिए डर जाते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं. हम बहुत आसानी से इसको और सब्जेक्ट्स की तरह ही पढ़ना सीख सकते हैं और याद रखना भी सीख सकते हैं. So there are generally considered to be at least 9 umbrella fields of biology, each of which consists of multiple subfields. ठीक है. अब यहाँ पर मैं आपको कुछ 9 fields बताने जा रही हूँ, which we can say that umbrella fields. कि आप बायोलॉजी की स्टिक पकड़ के खड़े हैं तो बायोलॉजी केवल आपको डॉक्टर ही नहीं बनाएगी. You have different 9 fields. So just look over the multiple subfields.
Now let's see, these are biochemistry, botany, cellular biology, ecology, evolutionary biology, genetics, molecular biology, physiology, zoology. तो all together just these are 9 fields. केवल आप डॉक्टर ही नहीं बनते हैं यदि आप बायोलॉजी लेते हैं, आपके पास बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए एक एक करके मैं बहुत जल्दी से आपको इन सभी फील्ड्स के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। क्या है एक्चुअल में बायोकेमिस्ट्री? द स्टडी ऑफ द मटेरियल सब्सटेंसेस दैट मेक अप लिविंग थिंग्स। ठीक है, उन मटेरियल सब्सटेंसेस के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं जिनसे लाइफ बनी है। नेक्स्ट देखो, बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। आप प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो बॉटनी से हमें क्या क्या हेल्प मिलती है। ये वी वांट टू बी द BAMS डॉक्टर, आयुर्वेद के बारे में हम जान सकते हैं, हम नेचुरोपैथिस्ट बन सकते हैं और हम अपने आप को सही रख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर फील्ड है हम उसमें भी जा सकते हैं। तो बायो से आपको इतनी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट देखो, सेलुलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द बेसिक सेलुलर यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। हमारी एक सेल में क्या प्रॉब्लम है, या वो कितनी अच्छी है या वो कितनी अच्छी बन सकती है, ये सब हम सेलुलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो देयर इज नो लिमिट ऑफ द बायोलॉजी। इकोलॉजी, आप इकोलॉजिस्ट बन सकते हो, द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। आज की हमारी जरूरत क्या है? हम सभी कोरोना की वजह से बहुत प्रॉब्लम में है, लेकिन जो भी हमारे होम रेमेडीज हैं दे आर हेल्पिंग मोर देन अदर्स। और इकोलॉजी हमें एटमॉस्फेयर की स्टडी करना सिखाता है एंड यू कैन गेट द एडवेंचर इन योर लाइफ ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट देखो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब किस तरह से हमारा ओरिजिन हुआ, किस तरह के चेंजेस आए, कौन सा इवोल्यूशन हमारी सराउंडिंग्स में काम कर रहा है, किस तरह की डाइवर्सिटी कंडीशंस हमारी सराउंडिंग्स में है, ये हमें किसने बताया? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने। तो आप भी बन सकते हो। So the study of the origins and changes in the diversity of life over time. So we have so many things to do with the subject bio, not only with the MBBS degree or the PhD and so on. No. Genetics, it's a very good branch. The study of heredity in plants and animals. It opens the secret of the life on this earth. जेनेटिक्स से आपको पता चलता है कि डीएनए कैसे फॉर्म होता है, आरएनए कैसे फॉर्म होता है। और जिन बच्चों ने जेनेटिक्स पढ़ी है या जिन साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स के बारे में जाना है, ओनली दे आर एबल टू मेक द वैक्सीन्स फॉर द कोरोना डिसीज, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी कि प्लांट्स में किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स जाते हैं, एनिमल्स में कैसे एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करेगा या उसको हार्मफुल होगा, वो सब हम जेनेटिक्स के थ्रू ही जानते हैं। बच्चों, आपने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्लास 10th में चैप्टर पढ़ा भी है, वो बहुत कम था। तो जब आप 11th एंड 12th में जाते हैं और जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो देन यू गेट लॉट्स ऑफ सीक्रेट्स ऑफ योर ओन। डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, प्रोटीन फॉर्मेशन, कैल्शियम फॉर्मेशन, विटामिन सी, ये सब आपकी बॉडी में किस तरह से काम कर रहे हैं, वो सब आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जितने भी वायरस, बैक्टीरिया या स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हमारी धरती पर हमें या तो बेनिफिट दे रहे हैं या हमें हार्म कर रहे हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्या एक छोटा फील्ड होगा ये? नहीं, इट इज अ वेरी वास्ट फील्ड एंड इट विल गिव यू द इनकम ऑल्सो। जब आप पढ़ते हैं और आपकी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं तो आपको यहाँ से भी बेनिफिट मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखो, फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। तो हमारी बॉडी एक मिरेकल है, इट्स अ ह्यूज ट्रेजर ऑन दिस अर्थ। तो यहाँ पर हमारी बॉडी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो यहाँ पर हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हर एक पार्ट किस तरह से फंक्शनिंग कर रहा है, उन सब के बारे में भी जब हम स्टडी करते हैं तो वो फिजियोलॉजी बन जाती है। इस तरह से हम फिजियोलॉजिस्ट बन जाते हैं।
ठीक है, तो आपके पास बायो से ही एक और ब्रांच मिल गई। नेक्स्ट आता है आपको जूलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एनिमल बिहेवियर। जब हम अलग अलग एनिमल्स के बारे में जानना चाहते हैं या अभी तक हमने जाना है, जितना भी हमारी बुक्स में लिखा हुआ है एनिमल्स के बारे में, तो वो हमें किसने बताया? जूलॉजिस्ट ने बताया। उन्होंने हमें बताया कि डायनासोर थे, वो खत्म हो गए। अब वायरस है, अब उसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं? क्योंकि वायरस भी इज अ काइंड ऑफ अ लिविंग कंडीशंस, और वो किसे नुकसान पहुंचा रहा है? हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल क्रिएचर्स हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहा है। वो सब हमें कौन बताएगा? जूलॉजी बताएगी। So zoology is also a very reputed condition for all of us. I hope that you have got a correct guideline about the choice of the subject biology. So, in my opinion, the world needs biologists like never before to solve many of the challenges it faces today. As the human population continues to grow and living standards continues to improve, pressure on the natural world to feed, clothe, and provide energy for us will test scientists, especially the biologists. As we can explain the problem of how to take millions of tons of carbon dioxide out of atmosphere every day without causing harmful side effects in the process, awaits those who feel inclined to save the world. So, are you ready to save the world? So you are beginning your career during biology's golden age. Thank you. Have a nice day. Have a happy day. Bye bye.